Okay, first we'll start with chanting. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakti Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram. 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna everyone. Yes, Karan ji, turn on your camera. Hare Krishna, ma'am. Hare Krishna. So today's session is Hare Krishna everyone. So everyone will turn on their camera. Okay. So who will tell me what we have done in the last class? हमने last कथा session में कौन सी story की थी? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हमने last कथा session में कौन सी story की थी? Who will tell me? Just raise your hand. Was free to come in the camera. Yes, Abhilasha, unmute yourself. हरे कृष्ण मैम। Hare Krishna. मैम लास्ट सेशन में वैदिक कैलेंडर के बारे में पढ़ा था। Good. हमने वैदिक कैलेंडर के बारे में पढ़ा था। वैदिक कैलेंडर में क्या पढ़ा था? चैत्र, हमने मंथ्स नेम देखे थे, हमने डेज नेम देखे थे, हमने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का हमने कॉन्सेप्ट समझा था, और पूर्णिमा कब आती है, अमावस्या कब आती है, सब हमने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किए थे प्रीवियस सेशन में। वेरी गुड। सो आज जो हम करेंगे दैट इज, हम क्या करेंगे आज? आज हम पढ़ेंगे सनातन धर्म के बारे में। ठीक है, तो किसी को पता है क्या सनातन धर्म क्या होता है? एनीबॉडी? सनातन वर्ड का मीनिंग पता है आपको? ओके, लेट मी नो इफ स्क्रीन इज विजिबल, मुझे बताइएगा प्लीज। इज इट विजिबल? नाउ इज इट विजिबल? ओके ओके। सो बेसिकली आज की जो क्लास है दैट इज मिथ बस्टिंग। मिथ बस्टिंग का मतलब क्या होता है? मिथ का मतलब क्या होता है? विच इज दैट इज नॉट ट्रू, है ना? मिथ बस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे धर्म को लेके बहुत सारी भ्रांतियां का मतलब विच इज नॉट ट्रू, ऐसी बातें कही गई हैं। तो जो इतने सारे मिथ है हमारी सोसाइटी में सनातन धर्म को लेके, है ना, तो आज जो जितने भी मिथ है उसमें से कुछ मिथ आज हम बर्स्ट करेंगे, हम उसकी जो हम रियल मीनिंग ऑफ दोज थिंग्स समझेंगे। ठीक है, मिथ का मतलब होता है भ्रांतियां, जो गलत बातें स्प्रेड हुई हैं। तो आज एक के बाद एक हम उन चीजों को समझेंगे कि बेसिकली वो क्या है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे सनातन धर्म। ओके, सो डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातन? किसी को भी पता है? यस, अनम्यूट योरसेल्फ पायल। मैम जो हमेशा रहे। यस, इटर्नल, है ना, जिसका ना आदि है, जिसका ना अंत है ना।
जिसकी ना बिगनिंग है ना एंड है, दैट इज सनातन, है ना। यू कैन इमेजिन ऑफ दिस, लुक एट द सर्कल, है ना। ये सर्कल का कोई बिगनिंग पॉइंट और कोई एंड पॉइंट है क्या? नहीं। वैसे ही हमारा सनातन धर्म है, इसकी ना बिगनिंग है ना एंडिंग है ना। सो इट्स सनातन धर्म इज द मोस्ट एंशियंट धर्म, है ना। सो विल लर्न। अच्छा, रिलीजन का मतलब क्या होता है? धर्म का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड धर्म एंड रिलीजन? धर्म का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? नायरा बताएंगी आप? अनम्यूट योरसेल्फ। एक्सक्यूज मी मैम, मैम आप क्या करा रहे हो? मैम मैं ना, मैम आई नॉट एबल टू जॉइन द क्लास। You could not join early. Okay, आज का जो सेशन है that is about myth busting. myth का मतलब होता है भ्रांति, है ना। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सर्कुलेटेड है हमारे सनातन धर्म को लेके बहुत सारी। तो आज हमको एक करके जो मिथ स्प्रेडेड है उसको हम क्या करेंगे? बर्स्ट करेंगे। हम वो मिथ्स को हम जो है खत्म करेंगे। हम वी विल क्लियर आवर डाउट्स। ओके, यस पायल, अनम्यूट योरसेल्फ। क्या मतलब होता है धर्म का और रिलीजन का? क्या डिफरेंस है? किसी को पता है? Yes, Abhilasha, unmute yourself. मैम धर्म मतलब जो एक अलग होता है, अलग से मतलब होता है, और रिलीजन जो है उसी का इंग्लिश वर्ड है। So we have wrong concept about it. Basically, धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, ठीक है। और रिलीजन का मतलब होता है बिलीफ सिस्टम, ठीक है। तो ये जो धर्म है वो ड्यूटी है। हमें ड्यूटी कैसे पता पड़ेगी? एज वी नो, अभी आप भगवत गीता के कुछ श्लोक वगैरह भी पढ़ रहे हैं। तो भगवत गीता किसके द्वारा बोली गई है? भगवान के द्वारा। तो धर्म, धर्म या अधर्म के बारे में हमें कहाँ से पता पड़ेगा? हमारे शास्त्रों के, वेदों के और हमारी भगवत गीता के थ्रू हमको पता पड़ेगा कि क्या धर्म है। धर्म का मतलब होता है, धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। और रिलीजन का मतलब क्या होता है? बिलीफ सिस्टम। Religion means one of the system of beliefs that is based on a belief in a god or gods, है ना। कि जो बिलीफ है इट कैन बी चेंज, इट इज चेंजेबल। आज आप किसी एक भगवान पे बिलीव कर रहे हो, कल आप दूसरे भगवान पे बिलीव कर रहे हो, है ना। आज अपने फ्रेंड के बोली बातों पे बिलीव कर रहे हो सकता है कल आपको लगे कि नहीं वो तो गलत इन्फॉर्मेशन देती है, तो आप उसको उस पर बिलीव ना करो। सो रिलीजन मीन्स belief system. And what about the dharma? Dharma is duty. And what do you understand by Sanatan Dharma? Eternal duty. Okay. So as we know, जैसे for an example, ठीक है, जो ये जो सनातन धर्म है, जो धर्म है उसके बारे में कहाँ से पता पड़ेगा? मैंने आपको बताया शास्त्रों से, वेदों से, भगवत गीता के थ्रू हमको ये पता पड़ेगा। जैसे कि क्योंकि हमको पता है कि भगवत गीता किसने बोली थी? श्री कृष्ण जी ने बोली थी, भगवान जी ने बोली थी। तो हमें क्या हमारे कर्म धर्म है क्या अधर्म है हमको किससे पता पड़ेगा? विद द रेफरेंस ऑफ आर शास्त्रास। लेकिन रिलीजन क्या है? रिलीजन आर चेंजेबल, बट सनातन धर्म इज नॉट चेंजेबल, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? मैन मेड बना हुआ है, ठीक है। तो दैट इज इम्परफेक्ट। वाई? बिकॉज आर सेंसेस आर इम्परफेक्ट। जो हमारे सेंसेस है ना, हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं है ना। सिर्फ पूर्ण इंद्रिया किनकी है? भगवान जी की, है ना। श्री कृष्ण है जो परम पुरुष है, पुरुषोत्तम है ना। तो जो हमको उनकी तरफ से जो ज्ञान मिल रहा है दैट इज धर्म। ओके, बट कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आपको पता है संविधान, संविधान रिटन बाय मेन। और जो हमारे मेन का जो बेसिक रूल, बेसिक नेचर क्या होता है? वी मेक मिस्टेक्स, है ना। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज नॉट फुल्ली करेक्ट बिकॉज दैट इज अपूर्ण, दैट इज imperfect. Why? Because our senses are also imperfect. How? जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मून, आप अपने घर से मून को देखते हैं तो उसका आपको साइज कितना दिखता है? छोटा सा। आप अपने घर की विंडो पे खड़े होकर मून को देखेंगे तो साइज क्या है? छोटा सा। बट इन रियल जो मून है इट्स वेरी ह्यूज इन साइज। तो हमारी आंखें क्या है कि एक लिमिट चीजों को वो इतने डिस्टेंस का क्लियर नहीं देख पाती, वो इल्यूजन क्रिएट करती है। वैसे फॉर एग्जाम्पल साउंड फ्रीक्वेंसी, है ना। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम एनिमल्स की वॉइस नहीं सुन सकते, है ना। जब आप देखते हो कि यू नो वेल्स टॉक टू ईच अदर, है ना। फिर
एनिमल्स टॉक टू ईच अदर, बट हमारी जो ईयर्स है, these senses are imperfect, so we cannot understand those sound frequency. हम वो साउंड फ्रिक्वेंसी को नहीं समझ सकते, है ना। तो इसीलिए क्या है कि जो ह्यूमन मेड है, जो मैन मेड है, वो क्या है, सब इम्परफेक्ट है। और जो जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे वेदास हैं, जो हमारी भगवत गीता है, हमारे जो श्रीमद् भागवतम है ना, वो किसने बोले हैं? वो भगवान के बोले शब्द। तो वी कैन गेट द नॉलेज, रियल नॉलेज फ्रॉम भगवत गीता, है ना। सो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसके बारे में हमको कौन बताएगा? वी कैन नॉट टेल। हमको कहाँ से पता पड़ेगा? भगवत गीता के थ्रू पता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस भगवत गीता किसने बोली है? श्री कृष्ण जी ने, परम पुरुष है, जो परम पुरुषोत्तम है ना। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड ड्यूटी। धर्म क्या है? ड्यूटी है। और रिलीजन क्या है? बिलीफ सिस्टम है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, जो रिलीजन है, जैसे धर्म, हिंदू धर्म हुआ, है ना, फिर जैनिज्म हुआ, बुद्धिज्म हुआ, सिख धर्म हुआ, ईसाई धर्म हुआ, तो ये सब क्या है? इनका बिगिनिंग है, स्पेसिफिक एरा में वो स्टार्ट हुए, है ना। जैसे कि जो सिख धर्म आया वो 500 साल पहले आया, है ना। वैसे ही क्रिश्चियनिटी कब आई? अराउंड सिखिज्म कब आया? 2000 ईयर्स अगो आया। इस्लामिक 1500 ईयर्स अगो आया। तो ऐसे ही स्पेसिफिक रिलीजन का जो है अलग अलग वो एरा में आए। लेकिन जो सनातन धर्म है वो क्या है? दैट इज एटर्नल, उसका बिगिनिंग भी नहीं है और एंडिंग भी नहीं है। तो व्हेनेवर इफ समवन आस्क यू, तो अगर आपको पूछा जाए कि आप कौन से धर्म को फॉलो करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई डोंट फॉलो एनी धर्म, I belong to Sanatan Dharma. It is to feel proud. We belong to Sanatan Dharma, which is the most ancient धर्म, है ना। सो धर्म क्या होता है? ड्यूटी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या ड्यूटी है? हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ये क्या है? धर्म है ना। हमें कभी किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, ये भी क्या है? धर्म है ना। ये धर्म है। हमें क्या करना है? हमें वायलेंस नहीं करना है, हमें किसी को तकलीफ नहीं देना है, ये भी क्या है? धर्म है। तो दीज आर द इटर्नल धर्म, है ना, सनातन। ये हमेशा ऐसे ही बिहेव करना है, आपको ऐसे ही रहना है। तो ये क्या है? इट इज नॉन निगोशिएबल। ये जो धर्म है वो नॉन निगोशिएबल है, आपको हमेशा इसको फॉलो करना है। लेकिन रिलीजन जो है, आपका फेथ है, आपका बिलीफ सिस्टम इज चेंजेबल। One may alter their beliefs, but the fundamental duty of being human remains unchanged. तो मैंने जैसे बताया कि बिलीफ सिस्टम इज चेंजेबल, आप अपना बिलीफ चेंज कर सकते हो। कभी आपने जो जैनिज्म की फिलोसॉफी है उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, कभी आप सिखिज्म की फिलोसॉफी को, लेकिन जो ड्यूटी है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है किस चीज की? ह्यूमन बने रहने की, वो क्या है? अनचेंज्ड, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आपको धर्मा का डेफिनेशन दिया है, पीपीटी में थोड़ा देखेंगे तो धर्मा मीन्स अ कोड ऑफ प्रॉपर कंडक्ट conforming to one's duty and nature as per Vedas, Shastras and भगवत गीता, है ना। तो धर्म का क्या मतलब है? कोड ऑफ कंडक्ट। बीइंग अ ह्यूमन, आपको कैसे रहना है, वो क्या है? वो आपकी ड्यूटी है। और ये हमको ज्ञान कहाँ से मिलता है? हमको वेदास, शास्त्र और भगवत गीता से ये ज्ञान मिलता है। तो इट इज अनचेंजेबल, इट इज नॉन नेगोशिएबल। आपको ये जो है एक अच्छी लाइफ लीड करने के लिए आपको क्या करना है? आपको धर्म का पालन करना होता है, ठीक है। जैसे कि सच बोलना हमारा धर्म है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अहिंसा, हमें कभी क्या करना है? हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें हमेशा नॉन वायलेंट रहना है। क्षमा, फॉरगिवनेस, तप, हमको तपस्या करनी है ना। बीइंग अ स्टूडेंट, व्हाट इज योर तपस्या? व्हेन यू स्टडी विद कंसंट्रेशन, इट इज योर तपस्या। दान, जप, ये सब क्या है? These are the code of conduct, है ना। कि धर्मा इज द ड्यूटी दैट इज यूनिवर्सली ट्रू फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग। ये सभी ह्यूमन बीइंग के लिए ट्रू है ना। यूनिवर्सल लेवल पे ये एक अटल सत्य है, हर किसी को ये ड्यूटी फॉलो करनी होती है। सच बोलना धर्म है, किसी को हानि न पहुंचाना धर्म है, दया भाव रखना धर्म है, क्षमा करना और क्षमा मांगना ये भी हमारा धर्म है, दान देना, जप करना, तप करना, ये सब हमारा धर्म है। दैट इज
non-negotiable. And what do you understand by Sanatan? Sanatan means eternal, never ending, which was there, is there, and will always be there. सनातन का अर्थ है शाश्वत, यह हमेशा बना रहने वाला, अर्थात जिसका आदि है ना अंत, न जिसकी बिगिनिंग है न जिसका एंड है, वो क्या है? सनातन। ठीक है, यहां तक किसी सबको समझ में आया व्हाट इज सनातन धर्म एंड व्हाट इज रिलीजन? डिफरेंस क्लियर हुआ? सबको डिफरेंस क्लियर हो गया इसका? ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन नोट डाउन, एट द एंड ऑफ द सेशन हम इसको डिस्कस करेंगे अगर आपका कोई डाउट है तो। ठीक है, सो व्हाट्स द सनातन धर्म? डिटरमाइनिंग ह्यूमन ड्यूटीज ऑन द बेसिस ऑफ वैदिक शास्त्र। ये ऑलरेडी आपको बताया मैंने, वैदिक शास्त्रों के आधार पर जो ह्यूमन ड्यूटीज है वो कंफर्म हो, है ना, दैट इज कॉल्ड धर्म। यस, द वैदिक नॉलेज इज टाइमलेस। जो वैदिक नॉलेज है वो क्या है? टाइमलेस है। Revealed to our ancient Muni Rishis through deep meditation and subsequently preserved as Vedic literature. This wisdom will always endure as genuine knowledge since it is divine guidance from Param Purush Bhagavan, who is inherently eternal, truthful and blissful. Therefore, the knowledge imparted by him is also everlasting and perpetually true. तो जो हमारे ज्ञान है जो कहाँ से आया? हमारे वैदिक, हमारे शास्त्रों से, वेदों से और हमारे भगवत गीता से आया है, वो टाइमलेस है। टाइमलेस मतलब उसका बिगनिंग और एंड नहीं है। और ये कैसे रिवील हुआ? जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने बहुत घोर तपस्या की, उन्होंने वो डीप मेडिटेशन किया, उन्होंने साधना की और फिर उन्होंने क्या किया? जो भगवान ने उनको नॉलेज दिया उसको वैदिक लिटरेचर के फॉर्म में लिख के उन्होंने सेव किया। जो विजडम है वो कहाँ से आता है? वो परम पुरुष परमात्मा से, क्योंकि वो दिव्य है। एज यू हैव हर्ड, व्हेन जब आप श्लोका पढ़ते हैं तब आपको पता होगा कि भगवान क्या है? दिव्य है। उनका जन्म और उनके कर्म क्या है? दिव्य है ना? तो जो डिवाइन है, दिव्य है। क्यों? क्योंकि वो भगवान है और उनके ही जो इंद्रियां हैं, उनके सेंसेस है, वो क्या है? वो परफेक्ट है। ठीक है, उनके अलावा सभी चीजें जो है, भगवान के अलावा सभी जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, सबके क्या है? ह्यूमन बींग है, देवता है, सबके क्या है? सबके जो सेंसेस है वो इम्परफेक्ट है। और क्योंकि ये नॉलेज कहाँ से आ रहा है? भगवान ने खुद ये नॉलेज दिया, इसलिए क्या है? दिस इज ऑल्सो एटर्नल एंड 100% ट्रू। Sanatan Dharma is a set of eternal universe laws that apply to all living beings with a conscience. These laws cannot be altered even by the gods. These laws were there at the time of the inception of the universe and would be there when it would be cease to exist. जब ये यूनिवर्स बना तब भी ये जो एटर्नल लॉस थे, एटर्नल यूनिवर्सल लॉस थे, वो तब भी थे और तब तक रहेंगे जब तक ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये दैट इज द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन। सो सनातन धर्म क्या है? सत्य है। सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, वायु प्रवाह करती है, अग्नि का धर्म है जलाना, जल का धर्म है भिगोना। ये क्या है? ये अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ठीक है, सूर्य का धर्म क्या है? उदय होना और अस्त होना, सनराइज एंड सनसेट। वायु, एयर का क्या है? फ्लो करना। फायर का क्या धर्म क्या है? जलाना। और जल का धर्म क्या है? भिगोना। दीज आर एटर्नल। फॉर एग्जाम्पल, फायर है, ठीक है, और मान लो वहां पे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, तो फायर, अगर छोटा बच्चा जो अनजान है, अगर वो भी फायर के पास जाएगा तो क्या होगा? फायर उसको भी उतना ही हर्ट करेगी जितना एक यंग पर्सन को, क्योंकि फायर का धर्म क्या है? जलाना। ठीक है, तो द नेचर ऑफ सनातन इज, बाय इट्स नेचर सनातन इज गॉड सेंटर्ड रादर देन प्रॉफिट सेंटर्ड। तो जो सनातन है वो क्या है? गॉड सेंट्रिक है, कोई प्रॉफिट सेंट्रिक नहीं है। इट इज एक्सपीरियंस बेस्ड रादर देन बिलीफ सिस्टम। ये बिलीफ सिस्टम पे नहीं बेस है, ये क्या है? एक्सपीरियंस बेस्ड है। इसका कोई डेट नहीं है, क्यों? इसका ना आदि है ना अंत है। और ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ विच कम्स फ्रॉम द सीड।
इनहेरेंट इन एंड इंक्लूसिव ऑफ ऑल इन द वर्ल्ड। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, ये सनातन धर्म सबके लिए सेम है। ये क्या है? ट्रांसजेंडरल है, मतलब ये क्या है? डिवाइन है, दिव्य है। The whole and the parts, loving of all and excluding none. So these are the nature of Sanatan Dharma. Now, what are the, अब जो है कुछ, अच्छा अभी सबको ये सनातन धर्म और रिलीजन में क्या डिफरेंस है ये क्लियर हो गया। सनातन धर्म क्या है समझ में आ गया। सो नाउ अब जो अगला मिथ है वो क्या है कि जो लोग है वो क्या बोलते हैं कि जो हमारे देवी देवता हैं वो क्या है, उनके पास हमेशा शस्त्र रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शिव जी के पास त्रिशूल है ना, राम जी के पास धनुष है, और फिर विष्णु जी के पास सुदर्शन चक्र है, हनुमान जी के पास गदा है। तो ऐसा क्या मिथ क्या है कि लोग बोलते हैं कि जितने भी हमारे देवी देवता हैं, मतलब सनातन धर्म में बड़ा वायलेंस है, सनातन धर्म में वायलेंस को प्रमोट करते हैं, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं उनके पास क्या है, उनके पास अस्त्र और शस्त्र हैं। सो दैट शुड नॉट बी देयर, है ना। तो अब एक्चुअली जो भगवान जी कहते हैं कि शस्त्र और शास्त्र के साथ शस्त्र को भी को चलाना भी आना चाहिए। ठीक है, कैसे? त्रिशूल जो है, जैसे हमारे दुर्गा माता जी के पास भी त्रिशूल है, ठीक है। तो जो आपने इतनी सारी स्टोरीज आपने सुनी, आपने इतनी सारी स्टोरीज डिफरेंट डिफरेंट गॉड गॉडेसेस की, आपने देवी देवताओं की स्टोरी सुनी, तो किसी भी ऐसी स्टोरी में सुना है कि बिना मतलब के, विदाउट एनी रीजन, जो हमारे देवी देवता हैं, हमारे भगवान हैं, वो शस्त्रों का उपयोग करते हैं? नो। लेकिन आपने 4.8 में आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, परित्राणाय साधु नाम, है ना। जो भगवान क्या बोलते हैं कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो वो क्या क्यों अवतरित होते हैं? साधुओं की रक्षा के लिए, असुरों को विनाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। जब जब सोसाइटी में अधर्म बढ़ता है और धर्म को स्थापित करना होता है, तब तक भगवान क्या होते हैं? अवतरित होते हैं, है ना। तो ऐसा आपने एक श्लोक सुना होगा, अहिंसा परमो धर्म, है ना। क्या है कि वायलेंस नहीं करना चाहिए। बट दैट इज इनकम्प्लीट श्लोक। व्हाट इज द कंप्लीट श्लोक? एनीबडी हु नोज व्हाट इज द कंप्लीट श्लोक? कोई किसी को पता है? व्हाट इज द कंप्लीट श्लोक? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। ऐसा गांधी जी ने बोला था कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा करना उससे बड़ा धर्म है। जब जब अधर्म समाज में फैलता है तब तब भगवान अवतरित होते हैं, है ना। जन्म नहीं लेते, अवतरित होते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड अपीयर। अपीयर होते हैं, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, जब प्रहलाद महाराज को उनके फादर, हमने स्टोरी सुनी थी ना प्रहलाद महाराज की, जो उनके फादर थे हिरण्यकशिपु, जब वो उनको क्या करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। व्हाई? बिकॉज प्रहलाद महाराज वॉज अ ट्रू डिवोटी। तब भगवान जी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, है ना। सुना था ना स्टोरी। तो अब क्या है कि भगवान जी अवतरित होते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए और असुरों का नाश करने के लिए, और साथ ही साथ समाज में जब जब अधर्म की बढ़ोतरी हुई है तो धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है कि जब त्रेता युग में रावण जो थे, उन्होंने अपना अधर्म बढ़ा दिया था, तो श्री राम आए थे, उन्होंने उनको रावण के जो रॉन्ग, क्योंकि ही वॉज अधर्मी, है ना। तो राम जी आए थे, अवतरित हुए थे। वैसे ही कंस भी बड़े अधर्मी थे, समाज में बहुत हाहाकार मचा था, ही वॉज वेरी क्रूएल। तो कृष्ण जी का अवतरण हुआ था। जैसे दुर्योधन, है ना। दुर्योधन कौन थे? यू नो द स्टोरी ऑफ महाभारत, देयर वाज अ फाइट बिटवीन कौरवास एंड पांडवास। वाई? बिकॉज दुर्योधन ने क्या बोला था कि मैं एक सुई भर भी जमीन का हिस्सा नहीं दूंगा। आज श्री कृष्ण जी क्या किए थे? मीडिएटर बन के उन्होंने समझाया कि आप 5 गांव दे दीजिए पांडवों को, उससे ज्यादा नहीं चाहिए।
तो उन्होंने क्या बोला, दुर्योधन इतने लालची थे कि उनको, he was very greedy, he was not a good person, he was very cruel, so he demanded a war, है ना, उन्होंने वॉर किया, that was महाभारत, है ना। और उस महाभारत में फिर क्या हुआ, श्री कृष्ण दुर्योधन का क्या करते हैं, वो समाज को, अगर दुर्योधन किंग बन जाते तो क्या होता, अधर्म फैलता। तो धर्म की स्थापना करने के लिए दुर्योधन, कंस जैसे असुरों को, बुरे व्यक्तियों को, पापियों को, अब समाज को उनसे मुक्त करवाने के लिए जो कृष्ण भगवान अवतरित हुए थे। आई टेक योर डाउट लेटर नायरा, ओके। पहले कंप्लीट कर लेते हैं जितने भी मिथ है, उसके बाद आपके डाउट्स लेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना कि हमारे जो सनातन धर्म में जो वायलेंस को प्रमोट किया जाता है, दैट इज अ मिथ, है ना। बिकॉज इट इज नॉट लाइक कि विदाउट रीजन हमारे देवी देवता जो है अपना शस्त्र उठाते हैं, है ना। देयर इज ऑलवेज रीजन, ओके, क्लियर क्लियर। ये जो मिथ है वो दैट इज रॉन्ग, कि हम हमारे सनातन देवी देवता के पास जो सॉरी, दैट वाज अ डिफरेंट टॉपिक, मैंने पहले कर दिया, ओके। इसको पहले आपको बता देती हूँ। Yes, people can ask you why Bhagwan's in Sanatan Dharma has so many weapons. Sanatan Dharma is so violent. So Bhagwan carry weapons to protect their devotees, Bhakt, and those who are on the side of Dharma. जो धर्म को फॉलो करते हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो उनको बचाने के लिए अवतरित होते हैं। Also, our Bhagwan teaches us to stand up against evil and fight for dharma. They teach us to protect ourselves, है ना। तो भगवान क्यों आते हैं, हमें हमेशा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं, क्योंकि दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर कौन था, महिष का मतलब होता है बुल, और असुर मतलब राक्षस। तो और जैसे दशहरा, दशहरा में क्या होता है, रावण का वध किया था श्री राम जी ने। तो ये सब जो फेस्टिवल है, दीज आर गिविंग अस मैसेज कि जब भी समाज में अधर्म हो तो हमें हिंसा का उपयोग करना चाहिए, है ना। अधर्मियों का नाश करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो इट गिव्स अस लेसन कि अधर्म के लिए अगर हमें वायलेंट होना पड़े तो इट इज नॉट रॉन्ग। भगवान kills only those who are adharmis. For the re-establishment of dharma, Ram ji killed Ravan, Krishna came to uphold dharma, है ना। पर ये अभी हमने डिस्कस किया। तो भगवान जो है अधर्मियों और पापियों का नाश करने के लिए आते हैं, और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, रीस्टैब्लिशमेंट के लिए भगवान जी अवतरित होते हैं, ठीक है। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की हमको रक्षा करनी है और धर्म हमारी रक्षा करेगा। क्लियर है ये, क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, जो नेक्स्ट मिथ है कि हाउ मेनी देवी देवतास आर देयर इन सनातन धर्म। किसी को पता है कि कितने सारे देवी देवता है सनातन धर्म में, किसी को पता है, एनीबडी? ओके, अभिलाषा, वेट बेटा, यस, मोक्षा, अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम 33 कोटि। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय कोटि? मैम कैटेगरी। वेरी गुड, सो यू नो दैट। एक्चुअली जो है ये मिथ है कि जो सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता हैं। एक्चुअली 33 कोटि बोलते हैं। तो कोटि जो है एक संस्कृत वर्ड है, और इसके 2 मीनिंग्स है ना। क्या होता है, एक मीनिंग है करोड़ और एक मीनिंग है टाइप्स, प्रकार, है ना। तो यहाँ पे क्या मीनिंग आ रहा है, 33 कोटि मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, 33 टाइप्स ऑफ देवी देवता। कोटि has many meanings, but here koti means type of. There are 33 types of देवी देवतास, not 33 crores, है ना। कोटि का मतलब 2 होता है, 1 करोड़ होता है और एक टाइप्स। तो यहाँ पे क्या मीनिंग निकल रहा है, टाइप्स, ठीक है। सो here are types of देवी देवता, 12 आदित्य, 11 रुद्रास, 8 वसुस, है ना।
These are the to Ashwini Kumar. So these are the 33 types of देवी देवतास. अब जो इनका और डिटेल जो है आप एडवांस क्लास में पढ़ेंगे. ये कौन, जो 12 आदित्य के क्या नेम थे, 11 रुद्रास के क्या नाम थे, इसका डिटेल आप अपनी एडवांस क्लास में आप रीड करेंगे, समझेंगे. ठीक है. तो कोटि वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे टाइप्स. क्लियर है? इज इट क्लियर? So next, so here names are given. You will get the PPT. You can write later. But इसके बारे में ज्यादा डिटेल आप सीनियर क्लासेस में, जब आप एडवांस क्लास में जाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे. ये देखिए, 12 रुद्रास, 8 वसुस, 2 अश्वनी कुमार्स. Yes, clear? This myth is clear. It is not 33 crores. It is 33 types. Okay. So now next topic. जो next myth है वो क्या है कि आपने ये टर्म सुने होंगे ना, मनुष्य, देवता, भगवान, परमात्मा एंड प्रभु. तो आपको क्या लगता है, क्या सबका मीनिंग सेम है? क्या हम भगवान के लिए देवी देवता वर्ड यूज कर सकते हैं? क्या प्रभु, परमात्मा ये सब एक ही वर्ड्स हैं, एक ही मीनिंग देते हैं? सो टुडे विल अंडरस्टैंड द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ दिस डिफरेंट टर्म्स. मनुष्य, सो हु आर द मनुष्य? वी आर मनुष्य, है ना, वी ह्यूमन बींग्स. हम किससे बने हुए हैं? हम ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी से बने हुए हैं. आपको पता, आपने पढ़ लिया ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी के बारे में? यू नो, ग्रॉस बॉडी में क्या होता है? 5 एलिमेंट्स होते हैं. हम 5 एलिमेंट्स से मिलके बने हैं. वो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कौन बताएगा? देखो, लुक एट द पिक्चर. वी ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड मनुष्य और मानव. वी आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स. ये कौन सा है? ग्रॉस बॉडी एलिमेंट. अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस. हमारी बॉडी इन 5 तत्वों से मिलके बनी है. ठीक है. अर्थ मतलब विषय ना कि हमारे मिट्टी के बने हुए हैं, जो ये मसल्स है मिट्टी के, है ना, मिनरल्स वगैरह लगता है. वाटर, हमारी बॉडी में 75% वाटर है. फायर, यू नो, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव फायर होती है, जिसके कारण आपका फूड डाइजेशन होता है. एयर, हमारी बॉडी में एयर भी है. अच्छा, और स्पेस, स्पेस मतलब इधर, यू नो, बॉडी में जो वाटर है, एयर है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच गैप होता है, तो वो क्या हो गया? एथर. तो हमारी बॉडी किससे बनी है? ग्रॉस एंड सटल बॉडी से मिलके बनी. सटल बॉडी के 3 एलिमेंट्स क्या है? मन, अहंकार, बुद्धि. सो वी आर मेड अप ऑफ दीज एलिमेंट्स. ठीक है. अब देवी देवता कौन होते हैं? देवी देवता का कौन होते हैं? देवता का मतलब होता है देने वाला. देवी का मतलब उसका फीमेल वर्जन, देने वाली. ठीक है. देवता का मतलब होता है देने वाला और देवी का मतलब होता है देने वाली. ठीक है. सो अब जैसे कि हमको अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग देवता है. फॉर एग्जाम्पल, जल के देवता, हमारी बॉडी जल से बनी हुई है. जल के देवता कौन है? वरुण, है ना. पृथ्वी की देवी भूमाता, है ना. फिर फायर के देवता कौन है? अग्नि देवता, है ना. तो ये जो है, और वर्षा के देवता कौन है? वर्षा के देवता इंद्र देवता. तो अलग अलग जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए अलग अलग जो चीजें जरूरत होती है, उनको देने वाले देवी और देवता होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या चाहिए? आपको प्रोग्रेस चाहिए स्टडीज में, तो आप सरस्वती माँ के पास जाएंगे. आपको विजडम चाहिए तो आप गणपति जी के पास जाएंगे, है ना. और आपको बारिश चाहिए तो इंद्र देवता के लिए हवन होता है. सो देयर आर डिफरेंट देवी एंड देवतास हु गिव अस डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, है ना. तो देवी देवता कौन होते हैं? देने वाले. ठीक है. तो यहाँ पे हम हायरार्की समझेंगे. तो देवी देवता और भगवान सेम है क्या? अच्छा, बिफोर भगवान हम परमात्मा. परमात्मा कौन है? आपने सुना होगा ना परमात्मा. परमात्मा कौन है? भगवान के 3 फॉर्म्स होते हैं, एक ब्राह्मण, एक परमात्मा और एक भगवान. ब्राह्मण मतलब वाइल डूइंग मेडिटेशन, जो एक ज्योति स्वरूप आपके मिड ब्रेन में दिखता है, दैट इज ब्राह्मण, है ना. फिर उसके बाद आता है परमात्मा. परमात्मा कहाँ है? आपके हार्ट में. आपके हार्ट में आत्मा और परमात्मा दोनों है. ठीक है. तो हम बोलते हैं ना कि परमात्मा, तो परमात्मा का है आपके अंदर बैठे हुए हैं, वो परमात्मा है. और भगवान, जो भगवान का विग्रह होता है ना, जिसमें भगवान अपने का पर्सनल फॉर्म होता है,
तो जो ब्रह्मन है वो इम्पर्सनल फॉर्म है, परमात्मा भी जो है वो आपके अंदर बैठे हुए हैं, और जो भगवान है उनका विग्रह है, तो दैट इज पर्सनल फॉर्म। तो ये परमात्मा क्या है, हु इज फॉर्मलेस, उनका कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो यूजुअली यू नो देयर इज अ एनालॉजी गिवन इन भगवत गीता कि आपके हार्ट में टू बर्ड्स हैं, एक आत्मा एक परमात्मा है, ठीक है। तो जो परमात्मा है वो आत्मा को गाइडेंस देती है। तो परमात्मा कहाँ स्थित है, परमात्मा हमारे हार्ट में स्थित है, सुप्रीम सोल है ना। एक तो सोल है, एक तो सुप्रीम सोल है। जो परमात्मा है वो कौन है, वो सुप्रीम सोल है। तो भगवान के हमने थ्री फॉर्म समझे, ब्रह्मन जो है दैट इज इम्पर्सनल फॉर्म, परमात्मा जो हमारे हार्ट में है, और जो भगवान है दैट इज पर्सनल फॉर्म, जो आप देखते हैं ना चतुर्भुज फॉर्म में, है ना। आप कृष्ण जी का फॉर्म देखते हो, जो ये विग्रह होते हैं वो क्या है, वो उनका पर्सनल फॉर्म है, ठीक है। इज इट क्लियर व्हाट इज परमात्मा? मनुष्य कौन है, देवी देवता कौन है, परमात्मा क्या है, क्लियर हुआ? आगे बढ़े, ओके। अब नेक्स्ट आता है कि अब वर्ड यूज होता है प्रभु, है ना। हम प्रभु, भगवान को प्रभु बोल सकते हैं। प्रभु का मतलब क्या होता है, रक्षा करने वाला, प्रोटेक्टर। प्रभु का मतलब क्या होता है, रक्षा करने वाला, और या फिर यू कैन से प्रोटेक्टर। तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, तो कैन वी से हिम प्रभु? यस, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। प्रभु मीन्स प्रोटेक्टर। एक फार्मर, एक फार्मर रहता है, उसके पास एक काऊ है। तो जो फार्मर है वो क्या करता है, काऊ के खाने का इंतजाम करता है, उसको शेल्टर देता है, उसका टेक केयर करता है। अगर उसके आसपास जंगली जानवर भटकते हैं तो वो उसको उससे बचाता है। तो वो क्या हो गया, यहाँ पे फार्मर प्रभु हो गया। और गौ माता क्या देती है, गौ माता दूध देती है ना, जिसे फार्मर उसको बेच के अपना लाइवलीहुड स्पेंड करता है, लाइक वो उसका प्रोफेशन है। तो यहाँ पे जो गौ माता है वो क्या हो गई, देने वाली, देवता। और यहाँ पे जो फार्मर है वो कौन हो गया, प्रभु। इज इट क्लियर? प्रभु का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टर। तो यहाँ पे गाय के लिए जो फार्मर है वो प्रभु है, और गाय फार्मर के लिए देवता है। वाई? बिकॉज शी इज गिविंग, है ना। इज इट क्लियर? Okay, now the next term comes भगवान। भगवान, भगवान और देवी देवता में डिफरेंस है, भगवान और देवी देवता में डिफरेंस है। और ना इज अ हायरार्की। जो देवी देवता है, जो भी हमको देते हैं वो कहाँ से देते हैं, वो भगवान से मान के देते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ऊपर कौन है, टॉप मोस्ट पोजिशन पे भगवान जी, उसके बाद है देवी देवता, उसके बाद है मनुष्य, है ना। तो जैसे हमको कुछ भी चाहिए तो क्या करते हैं, जो देवी देवता आपने बताया, मैंने बताया, फायर के लिए अग्नि देवता है, वाटर के लिए वरुण देवता है, बारिश के लिए इंद्र देवता है, ज्ञान के लिए सरस्वती माता है ना। और तो ये जो है, ये कौन है, ये देवी देवता है। तो ये टॉप पोस्ट में भगवान, फिर देवी देवता, फिर मनुष्य। तो भगवान कौन है, भगवान, भक्त का मतलब होता है बॉडी, और वान का मतलब है हु रूल्स दिस मटेरियल बॉडी। तो हमारी इस मटेरियल बॉडी को रूल कौन करता है, भगवान। This five elements, Bhagwan is the controller of this body, who is above all this material element. Like Sri Ram, Sri Krishna, similar way, Bhagwati we say for female Bhagwan, है ना। तो जैसे कि देवी देवता जो देते हैं, हम देवी देवता से मांगते हैं वो देते हैं, लेकिन वो उनको जो चाहिए वो भगवान से मांगते हैं और फिर हमको देते हैं। तो टॉप मोस्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में प्रिंसिपल है, टीचर्स है ना। टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, टीचर्स आपको आपको क्या लगता है कि आपके टीचर सब कर रहे हैं, बेसिकली मेन डिसीजन कौन लेता है, प्रिंसिपल। मान लो प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि आज हाफ डे स्कूल चलनी है, तो हाफ डे चलेगी। प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि आज स्कूल बंद रहेगी, तो बंद रहेगी। तो देयर इज अ हायरार्की, प्रिंसिपल है, फिर टीचर है, फिर स्टूडेंट्स है। इन द सेम वे सबसे ऊपर कौन है, टॉप मोस्ट कंडीशन में भगवान जी है, फिर उसके बाद है देवी देवता, फिर उसके बाद है कौन, उसके बाद है वी द ह्यूमन बीइंग, जो ये मृत्यु लोक में जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं। क्लियर? ये आपने कर लिया ना, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो भगवान कैरी वेपन्स टू प्रोटेक्ट देयर डिवोटीज, ये मैंने आपको बता दिया।
बेटा सो फाइनली अभी हमने जो है मिथ, हमने जितने भी मिथ थे उनको बर्स्ट किए। क्या क्या मिथ थे आज हमने देखा? पहले सनातन वर्ड का मीनिंग देखा, फिर हमने सनातन धर्म वर्सेस रिलीजन का डिफरेंस समझा, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि कोटि शब्द का अर्थ क्या है। कोटि का शब्द जो 33 कोटि देवी देवता का मतलब 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 टाइप्स ऑफ देवी देवता है। फिर उसके बाद हमने समझा कि मनुष्य, देवी देवता, परमात्मा, प्रभु, इन शब्दों के बीच क्या डिफरेंस है। कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान के लिए देवी देवता वर्ड यूज कर लेते हैं और देवी देवता के लिए भगवान, बट देयर इज डिफरेंस, देयर इज अ हायरार्की। ओके, देन हमने समझा कि जो सनातन धर्म में जो हमारे देवी देवता है वो वेपन लेके क्यों है, तो उसके पीछे क्या रीजन है, ये सब आज हमने समझा। ये जितने भी मिथ थे हमने ये क्लियर किए। ओके, इज एनी डाउट? समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? Is there any doubt? Yes, Naira, turn on your camera. Now you can ask your doubt. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलिए। मैम आप हमको स्टोरीज कब कराओगे? बेटा आज स्टोरी नहीं था आपका, एक्चुअली अब ऑलमोस्ट 2 सेशंस आर देयर, फिर आपका ये बैच कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप एडवांस क्लास में जाओगे, एडवांस कोर्स में जाओगे। तो आपकी स्टोरीज कंप्लीट हो गई है, अभी एक और सेशन इसके ऊपर है ना? स्टोरीज आर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। डिड यू गेट टू दिस? मैम जो अभी आप बोला एडवांस क्लास, वो कब से है? अभी आपके एग्जाम्स होंगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे फिर आप एडवांस के लिए जाओगे, तो इसका जो भी इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होगी आपके ग्रुप में आ जाएगी बेटा। ओके? ओके मैम। मैम कैन आई लीव द क्लास? यस यू कैन, इफ यू डोंट हैव एनी डाउट यू कैन लीव। यस देवांश। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम टॉपिक का नाम क्या था? मिथ बर्स्टिंग। ओके मैम। कोई डाउट? समझ में आया? इतने सारे हमने चीजें क्या क्या समझे? हमने सनातन वर्ड का मीनिंग समझा, हमने सनातन धर्म और रिलीजन के बीच डिफरेंस समझा, हमने 33 कोटि देवी देवताओं का रियल सेंस में समझा, फिर हमने क्या समझा कि सनातन धर्म में जो वायलेंस है वो क्यों है, फिर हमने मनुष्य, देवी देवता, भगवान, प्रभु, इन वर्ड्स के बीच में डिफरेंस समझा। तो ये जो मिथ्स है वो आज हमने क्लियर किए। ठीक है? और किसी को डाउट है? थैंक यू। Is there any doubt? No doubt? Okay. So now we can end the session. Hare Krishna, everyone. Hope you enjoyed today's session. Hare Krishna.